Assalamu alaikum everyone. Um, Today we are going to discuss about paper 5 planning analysis and evaluation for May June 2021 variance 52. Duration of this paper is 1 hour 15 minutes and the periodic table and the important constant values are always given at the end of the page. All right, so let's start with this paper. Let's see what we have in the question number 1. The student is asked to find the enthalpy change for the reaction between anhydrous magnesium sulfate and water. Okay, that's an enthalpy change का practical और enthalpy change A1 से related है and I believe कि मैंने ये करवाया हुआ भी है आपको A1 के अंदर. So let's talk about some stuff here. The first one is कि when we talk about anhydrous, meaning there is no water of crystallization. All right. This enthalpy change cannot be measured directly. Why? Because हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो सॉलिड में है और सॉलिड का टेम्परेचर मेजर नहीं हो सकता, विच इज वाई हम इसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते एंड विच इज वाई फॉर सच रिएक्शंस हम हेसेस लॉ को यूज करते हैं in order to calculate the enthalpy changes for such reactions, and we have done this question as well in A1. So हम यहाँ पर ये बात भी लिख देते हैं कि cannot be measured directly. Why? Because magnesium sulfate is solid and cannot possible to find the temperature of solid substance. ठीक. Predict whether enthalpy change for this reaction is positive or negative. Positive or negative means exothermic or endothermic. Explain the reason for your prediction. Okay, so what we have in the equation is कि magnesium sulfate जो है वो water के साथ combined होके hydrated salt बना रहा है. तो this is basically your hydrated salt. Anhydrous से hydrated हो गया, and hydrated का मतलब होगा कि इसमें water of crystallization available है. So basically अगर आपको याद हो मैंने A1 केमिस्ट्री में आपको और A2 में भी बताया है कि लेट्स सपोज मेरे पास मैग्नीशियम आयन है, तो जब हाइड्रेशन होगी तो ऑब्वियसली 6 वाटर मॉलिक्यूल अटैच होंगे, राइट? ये 4 हो गए, ये 5th हो गया एंड दिस वन इज 6th एंड ऑब्वियसली उसके साथ सल्फेट है, तो मैं यहाँ पर इनफैक्ट मैं यहाँ से 2+ हटाता हूँ और मैं यहाँ पर 2+ लगाता हूँ, राइट? इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, और यहाँ लिख देता हूँ सल्फेट. सो इस रिएक्शन में एक्चुअली कुछ इस तरह से हो रहा होगा कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मैग्नीशियम आयन के अराउंड जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या आयन डायपोल अट्रैक्शन फॉर्म कर रहे होंगे, which means it is a bond forming process, which is why it is exothermic, so enthalpy change would be negative. So अब यहाँ लिखेंगे this is because of the formation of electrostatic bond or ion dipole attraction between magnesium sulfate and water.
ऑलराइट, मैग्नीशियम सल्फेट बोलो या मैग्नीशियम आयन बोलो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, बात एक ही है। नाउ लेट्स move to the part B. The student decided to do two separate experiments. In experiment 1, to find the enthalpy change of solution of anhydrous magnesium sulfate, 0.0250 moles of magnesium sulfate are dissolved in 50 cm cube of distilled water. Okay, 50 cm cube of distilled water we have in the question. We have 0.025 moles of solid magnesium sulfate. All right. In experiment 2, to find the enthalpy change of solution of hydrated magnesium sulfate, 0.0250 moles of hydrated salt is dissolved in 50 cm cube of distilled water. तो आप नोट करें दोनों में वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज सेम, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इज सेम, सिर्फ आप एक जगह एनहाइड्रस सॉल्ट ऐड कर रहे हो और एक जगह हाइड्रेटेड सॉल्ट ऐड कर रहे हो। इसका मतलब इसकी एंथैल्पी चेंज भी निकलेगी, इसकी भी एंथैल्पी चेंज निकलेगी बाय यूजिंग हेसेस लॉ, और दोनों को फिर हम हेसेस लॉ पे अप्लाई करके डेल्टा एच की वैल्यू यानी एंथैल्पी चेंज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मोस्ट लाइकली कुछ इसी तरह से आगे चल के क्वेश्चंस में होगा। वो कह रहे हैं द रिजल्ट्स for experiment 1 are shown in the graph of temperature against time on page 3. Okay. फिर वो आपसे ये भी कह रहे हैं draw and extrapolate the cooling curve back to 180 seconds. Determine the temperature change during the reaction. Okay. So we need to extrapolate and draw the cooling curve. So let's move on page 3 first. Okay. So y एक्सिस के ऊपर मेरे पास टेम्परेचर है और x एक्सिस के ऊपर मेरे पास टाइम है। टाइम मेरे पास सेकंड में है, टेम्परेचर मेरे पास डिग्री सेल्सियस में है। एग्जामिनर ने पॉइंट्स मुझे प्लॉट करके दिए हुए हैं। इसका मतलब मुझे स्केच करना है तो मैं स्केच कर लेता हूँ। यहाँ पर ये आएगा इस तरह से, ठीक है, बल्कि हम इस तरह से कर लेते हैं कि ये इस तरह से आ रहे हैं, राइट। और उसके बाद ये इस तरह से, ठीक है, और एक्स्ट्रापोलेट करेंगे 180 सेकंड पे। तो ये मैंने एक्स्ट्रापोलेट किया 180 सेकंड पे, ठीक है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। No, it's not good at all. Wait. इसको एडजस्ट कर लेते हैं। आई थिंक इट माइट बी द राइट वन, राइट। ओके, अब मुझे इस ग्राफ को 180 सेकंड के ऊपर, बैक टू 180 सेकंड कहा था, हाँ बैक टू 180 सेकंड बोला था मुझसे। सो मैं 180 सेकंड के ऊपर एक्स्ट्रापोलेट किया है मैंने इसको। तो ये मैंने 180 सेकंड्स के ऊपर एक्स्ट्रापोलेट यहाँ से भी किया है और यहाँ से भी किया है। सो मैं यहाँ पर एक डिफरेंट लाइन यूज कर लेता हूँ एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद, वो ये आ जाएगा। एक्चुअली you have done this experiment in AS practicals, right? क्योंकि आपने AS practicals नहीं किए हुए। oops, wait. Yeah, it's seen. No. Yeah, it's fine now. Okay. So बेटा ये जो आपने पॉइंट फाइंड आउट किया है, ये पॉइंट एक्चुअली इनिशियल टेम्परेचर का है, दैट इज योर T1, राइट। और ये टेम्परेचर मुझे मिल रहा है 19.5 यहां से, ठीक है। 19.5 डिग्री सेल्सियस इज योर T1, दैट इज योर इनिशियल टेम्परेचर। और बेटा यहां से मुझे T2 मिल रहा है, दैट इज योर फाइनल टेम्परेचर। एंड आई बिलीव कि ये T2 मुझे यहां से मिलेगा अगर मैं इसको प्लॉट करूं
तो ये एग्जैक्टली 27.5 पे मुझे मिल रहा है, दैट इज योर T2। तो मुझे इनिशियल टेम्परेचर भी मिल गया एक्सट्रापोलेट करने के बाद बैक टू 180 सेकेंड, और मुझे फाइनल टेम्परेचर भी मिल गया, राइट। सो आई विल यूज दिस डेटा टू फाइंड द टेम्परेचर चेंज इन बी पार्ट 1। सो डेल्टा टी हमेशा क्या होता है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर मेरे पास है 27.5 आई थिंक सो, और इनिशियल टेम्परेचर है मेरे पास 19.5। तो यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी बेटा, आई बिलीव 8.0 डिग्री सेल्सियस। मैं यहाँ पर लिखूंगा 8.0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर वो आपसे पूछें द anhydrous magnesium sulfate was not added when the timing started. Okay, explain why. That's a important question. देखिए स्टार्ट यहाँ से हुआ था, फिर टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, और आपने 180 सेकेंड्स के ऊपर जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व किया, जिसकी वजह से टेम्परेचर शूट हुआ, और फिर आपने उसका चेंज डिटरमिन किया, राइट। तो यहां से यहां तक जाने में जाहिर सी बात है मुझे ये इनिशियल टेम्परेचर को नोट डाउन करना है। तो मैं थर्मामीटर को यूज करूंगा, आई मीन I can allow thermometer to read the initial temperature of the solution accurately, which is why हमने उस वक्त ऐड नहीं किया जिस वक्त हाँ जी, ये है the anhydrous magnesium sulfate was not added when the timing started, ठीक है। ओके ओके, आई गॉट द पॉइंट कि मैंने इस जगह पे ऐड नहीं किया, मैंने इस जगह पर ऐड किया, और मैंने इस जगह पर ऐड इसलिए किया ताकि ये टेम्परेचर रूम टेम्परेचर को अचीव करे, नंबर 1, और नंबर 2 इनिशियल टेम्परेचर को नोट डाउन करने में भी मुझे हेल्प करे, सही है। सो आई विल यूज बोथ द पॉइंट्स हियर। फर्स्ट इज to allow the temperature of water would be equilibrate with room temperature. Also, to allow thermometer to read the initial temperature of solution accurately. अगर आपको याद हो, मैंने A1 में आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना सिखाया था, और मैंने कहा था कि पॉलीस्टाइरीन कप लेंगे, उस कप के अंदर हम एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर लेंगे, और उस स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर का इनिशियल टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे। तो मैं सबसे पहले इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन को नोट डाउन करूंगा, और एक्यूरेटली नोट डाउन करने के लिए जाहिर सी बात है मैं उस वक्त मैग्नीशियम सल्फेट को ऐड नहीं करूंगा जब मैं टाइम स्टार्ट करूंगा, मैं थोड़ी देर के बाद ऐड करूंगा ताकि मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, एक्यूरेटली मेजर हो जाए। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू, ठीक है। Now the next is 3.01 gram of anhydrous magnesium sulfate is weight. Outline the next steps that should be taken in order to obtain the results in experiment 1. Write your answer using a series of numbered steps. अच्छा जी, आपको हमने मेजरमेंट्स करवाई थी स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए। तो एग्जैक्टली आपने यहाँ पर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन को मेजर करने के लिए जो
मेजरमेंट्स की थी उनको हमने वर्ड्स में लिखना है और स्टेप्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहला काम क्या किया था, हमने वाटर का एक स्पेसिफिक अमाउंट लेकर प्लास्टिक कप में प्लेस किया था। तो हम यहाँ पर भी यही करेंगे कि हमारे पास जो डिस्टिल वाटर हमने यूज किया हुआ है 50 cm3, इसको हम मेजर करेंगे मेजरिंग सिलेंडर से और इसको प्लास्टिक कप में प्लेस करेंगे, राइट। दैट इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट पॉइंट। हम यहाँ लिखेंगे measure 50 cm3 of distilled water through measuring cylinder and then place it in the plastic cup and then place it in the plastic cup। जब हम ये प्लास्टिक कप में सोल्यूशन प्लेस कर लेते हैं तो फिर हम थर्मामीटर को प्लेस करके इनिशियल टेम्परेचर बिफोर एक्सपेरिमेंट नोट डाउन करते हैं। इनिशियल टेम्परेचर ऑब्वियसली वाटर का होता है, राइट। सो मेजर द इनिशियल टेम्परेचर अच्छा, टेम्परेचर ऑफ वाटर को नोट करना है, लेकिन नोट डाउन किस सेंस में करना है। तो देखें ये है आपके पास 30, 60, 90, 120, 150, 180, 30 सेकंड्स के इंटरवल के ऊपर नोट डाउन करना है। तो हम ये मेंशन कर देते हैं यहाँ पर बात कि मेजर द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर every 30 seconds before adding magnesium sulfate। सॉलिड, ठीक। फिर जब टाइम रीच करेगा 180 सेकेंड्स पर तो आपने मैग्नीशियम सल्फेट को ऐड करना है। When time reaches at 180 seconds, then add solid magnesium sulfate। ठीक है, जब मैग्नीशियम सल्फेट को आप ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है थर्मामीटर से उसको स्टर भी करेंगे सॉल्यूशन को फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। For uniform distribution of heat, stir the mixture or stir the solution। ठीक है, और हम उस वक्त तक स्टर करते रहेंगे जब तक आपका टेम्परेचर 480 अचीव ना कर ले, राइट। This needs to be done every 30 seconds। This needs to be done every 30 seconds until time reaches
at 480 seconds. Alright? उसके बाद वो कह रहे हैं the student realized that when dissolving 0.025 moles of hydrated salt, the amount of water present in the compound alters the total volume of water used in experiment 2. और ये alter क्यों हो रहा है? Okay. वो कह रहा है calculate the volume of distilled water needed to make the total volume of water 50 cm cube in experiment 2. Okay, give your answer to the nearest 0.05 centimeter cube. Okay. So guys, ये जो आपके पास I believe total volume of water है, इस total volume of water में water of crystallization भी है और distilled water दोनों हैं, तो दोनों का मिला के 50 cm cube होगा, right? तो total water में क्या क्या होगा? Total volume of water includes distilled water, plus water of crystallization. Plus water of crystallization. ठीक है. Okay, so देखें कुछ इस तरह से होगा कि मेरे पास हाइड्रेटेड सॉल्ट है MgSO4.7H2O. अगर मैं इसको सेपरेट करूंगा तो ये कन्वर्ट होगा MgSO4 सॉलिड प्लस 7H2O में. That is your liquid. ये भी 1 मोल है and obviously ये 7 मोल है. ठीक है. This is your 1 mole of salt. This is your 7 moles of water. आपके पास 0.025 moles of hydrated salt था, तो obviously water यहाँ से कितना आ जाएगा? तो यहाँ से moles of water आ रहे हैं आपके पास 0.175 moles, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा. मोल्स ऑफ वाटर निकालने के बाद आप यहाँ से मास ऑफ वाटर कैलकुलेट कर सकते हो, और मास ऑफ वाटर कैलकुलेट करने के लिए मैं 0.175 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 18 से, विच इज द एमआर ऑफ वाटर, सो इट्स गोइंग टू बी 3.15 ग्राम. सही. ओके, तो पहली तो बात ये होगी. दूसरी बात, उन्होंने आपको क्वेश्चन में कहा है कि 1 cm cube is always equals to 1 gram. तो 1 cm cube is always equals to 1 gram. That's given in the question, right? तो अगर आपने 3.15 ग्राम कैलकुलेट किए थे वाटर के, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा वाटर का? 3.15 cm cube. So water of crystallization आपके पास 3.15 cm cube आ गया. Now we wanted to know कि distilled water का वॉल्यूम कितना होगा. तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास 50 है, उसमें से हम 3.15 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो हमारे पास 46.85 cm क्यूब डिस्टिल वाटर आ जाएगा. तो 46.85 cm क्यूब डिस्टिल वाटर में यूज करूंगा यहाँ पर. ठीक है. I hope it makes sense to you. That's kind of a trickiest part of the question. For 1 mark, it's a lot of a calculation actually. State which piece of apparatus should be used to measure the volume of distilled water in C part 1. Okay. आप जानते हैं कि ये जो वॉल्यूम है ये 2 डेसिमल प्लेस तक का वॉल्यूम है. तो 2 डेसिमल प्लेस के वॉल्यूम को एक्यूरेट मेजर करने के लिए ऑब्वियसली मैं ब्यूरेट को यूज करूंगा, क्योंकि ब्यूरेट की भी जो एक्यूरेट मेजरमेंट है वो प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर क्यूब होती है. दैट्स व्हाट वी हैव डन इन आयनिक इक्विलिब्रिया का चैप्टर, राइट?
सो हम यहाँ लिखेंगे ब्यूरेट और हम रीजन क्या देंगे, रीजन ये देंगे कि 46.85 सेंटीमीटर क्यूब must be measured accurately to 2 decimal place, which can be easily obtainable from burette as it has accuracy of plus minus 0.05 cm3. राइट, मैंने आपको एरर का टॉपिक भेजा हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं, वहां पर भी मैंने मेंशन किया भाई, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज the temperature change when 0.025 moles of hydrated salt is added to water is very small. Okay, is very small. Suggest how the student should modify the experimental procedure to make the temperature change larger. अच्छा, अगर आपके पास small amount of MgSO4 था तो जाहिर सी बात है आपके पास टेम्परेचर चेंज भी स्मॉल आया। तो अगर आपको टेम्परेचर चेंज लार्जर करना हो तो ऑब्वियसली इस अमाउंट को आप लार्जर कर लीजिए, यानी आप ज्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट यूज कर लीजिए। तो जब आप ज्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है जो टेम्परेचर चेंज है वो भी ज्यादा आ जाएगा, राइट। तो हम यहाँ लिख देते हैं increase in the amount of solid MgSO4 for large temperature change. ठीक है, सो स्मॉल वैल्यू है because moles of solid that is 0.0250 moles or less. मोल्स कम होंगे टेम्परेचर चेंज कम, मोल्स ज्यादा कर लीजिए तो टेम्परेचर चेंज भी ज्यादा आ जाएगा, यानी आप इसका अमाउंट ज्यादा यूज कर लीजिए। अच्छा, एक और चीज भी है, अगर मैं इसका अमाउंट ज्यादा यूज कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑलरेडी है, तो मुझे कम डिस्टिल वाटर जो है वो यूज करना होगा इन ऑर्डर टू मेक 50 cm3 सोल्यूशन, राइट। ये भी एक फैक्टर हो सकता है जिसको अपने जहन में रखना है, राइट। व्हाट आई एम सेइंग इज इसमें ऑलरेडी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो अगर तुम इसका अमाउंट ज्यादा यूज करोगे तो जाहिर सी बात है उसमें वाटर ज्यादा आ रहा होगा। तो डिस्टिल वाटर टोटल तुम्हारा 50 cm3 था, तो अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ज्यादा हो रहा है तो डिस्टिल वाटर को फिर तुम कम इस्तेमाल करोगे इन ऑर्डर टू मेक 50 cm3 ऑफ सोल्यूशन, राइट। तो तुम इसमें ये भी ऐड कर सकते हो, बिकॉज 1 मार्क का है तो मुझे लगता है कि ये काफी है, मोर देन इनफ है। ओके, the energy released by 0.0250 moles of solid in experiment 1 is this. The energy absorbed by this in experiment 2 is this. Calculate the enthalpy change for the reaction. Include a sign in your answer. Give your answer to 1 decimal place. So मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि एग्जामिनर जो है वो हमसे सॉलिड की भी एनर्जी कैलकुलेट करवाएगा, हाइड्रेटेड की भी करवाएगा और डेल्टा एच निकलवाएगा, बट सरप्राइजिंगली उसने हमें इन दोनों की एनर्जीज जूल्स में दे दी और अब वो कह रहा है कि इस इक्वेशन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू कैलकुलेट करो। दैट्स
वी नीड टू फाइंड आउट, राइट। लेकिन आप नोट करें, काम की बात यह है कि ये वैल्यू जूल्स में है, इसका मतलब ये डेल्टा क्यू की वैल्यू है। ये भी किस में है, जूल्स में है, इसका मतलब ये भी किस में वैल्यू होगी, डेल्टा क्यू में होगी। इफ यू रिमेंबर, हम सबसे पहले डेल्टा क्यू जूल्स में कैलकुलेट करते थे, फिर उस जूल्स को यानी डेल्टा क्यू को हम डेल्टा एच में कन्वर्ट करते थे। तो अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच फाइंड आउट करनी है, राइट, इस रिएक्शन के लिए अगर मुझे डेल्टा एच आर फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब मैं इस डेल्टा क्यू को डेल्टा एच में चेंज करूंगा। सो आई हैव वेरी लिमिटेड स्पेस, सो मैं यहाँ पर काम कर लेता हूँ। एक्सपेरिमेंट 1 के लिए बात कर लेते हैं। हम सब जानते हैं कि 0.025 मोल्स से आपको एनर्जी मिल रही है 2125। उप्स, एक मिनट, हम इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। डेल्टा क्यू जो है वो मेरे पास 2125 जूल्स है। इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं 1000 से कंपेयर करूंगा, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2.215 किलो जूल्स, राइट। अच्छा, मुझे पता है कि 0.025 मोल्स में मुझे कितनी एनर्जी मिल रही है, 2.125 किलो जूल्स, राइट। तो अगर 1 मोल होगा, क्योंकि डेल्टा एच तो बेटा 1 मोल के लिए कैलकुलेट होती है, इफ यू रिमेंबर, तो यहां से एक्सपेरिमेंट 1 के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, वैल्यू आएगी बेटा -85 किलो जूल्स पर मोल। ये मैंने एक्सपेरिमेंट 1 के लिए कैलकुलेशन करी। सेम गोज फॉर एक्सपेरिमेंट 2। तो मैं यहां कर लेता हूं एक्सपेरिमेंट 2 के लिए। मुझे डेल्टा क्यू की वैल्यू गिवन है 477.5। मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगा। जब मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.477 किलो जूल्स, राइट। ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप, 0.025 मोल्स में मुझे एनर्जी मिल रही है 0.477 किलो जूल्स। सो गाइस, इफ यू हैव 1 मोल, तो 1 मोल में मेरे पास कितनी एनर्जी होगी, दैट इज गोइंग टू बी माय डेल्टा H2, क्योंकि एक्सपेरिमेंट 2 है ये हो जाएगा +19.1 किलो जूल्स पर मोल। नाउ एक और क्वेश्चन, सर आपको कैसे पता चला कि ये माइनस है, आपको कैसे पता चला कि ये प्लस है? तो बेटा ये -1 इसलिए है क्योंकि एग्जामिनर ने मुझे कहा हुआ है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये प्लस इसलिए है क्योंकि एग्जामिनर ने कहा हुआ है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, दैट इंडिकेट्स एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। आप जानते हैं कि जब मैग्नीशियम सल्फेट को वाटर में प्लेस करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा मैग्नीशियम सल्फेट एक्वस में। तो हम इसको मैग्नीशियम सल्फेट एक्वस में कन्वर्ट कर लेते हैं एनर्जी साइकिल बनाने के लिए या हेसेलॉस साइकिल बनाने के लिए, राइट। और ये भी किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, एक्वस मैग्नीशियम सल्फेट में। That is going to be your delta H1, which is -85, and that is going to be your delta H2, which is +19.1. तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा H2, और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा H1, सही। अब जाहिर बात है, हमने A1 केमिस्ट्री में पढ़ाया था कि अगर आपने कैलकुलेशन करनी हो तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो बनाइए। ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, प्लस, ये दोनों वैल्यूज, ये वैल्यू क्या होगी, माइनस, इक्वल्स टू 0 करूंगा तो मेरे पास डेल्टा एच आर की वैल्यू आ जाएगी। सो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा डेल्टा एच आर प्लस 19.1 माइनस -85 equals to 0. So delta HR की value from this is going to be -104.1 kilojoules per mole, right? So मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -104.1 kilojoules per mole, right? I hope it makes sense to you. फिर वो कह रहे हैं, the student noticed that some magnesium sulfate solid in experiment 1 was left undissolved. Okay, that's an important statement.
some solid magnesium sulfate in experiment 1 was left undissolved, यानी मुकम्मल तौर से डिसॉल्व नहीं हुआ, कुछ ना कुछ अनडिसॉल्व फॉर्म में रह गया बीकर के अंदर। वो कह रहे हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट दिस वुड हैव ऑन द वैल्यू ऑफ द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इन स्टेप 1 और एक्सपेरिमेंट 1। अच्छा, इशू ये है कि ये वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए थी, मोर एक्सोथर्मिक होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि कुछ अनडिसॉल्व रह गया, विच इज वाई ये लेस एक्सोथर्मिक हो गई, यानी लेस एक्सोथर्मिक देन एक्सपेक्टेड, राइट। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए, पता ही ये चला कि जी कुछ ना कुछ सॉलिड अनडिसॉल्व रह गया, जिसकी वजह से ये वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो अगर मोर एक्सोथर्मिक होना चाहिए था तो लेस एक्सोथर्मिक हो गया। आई होप यू कैन गेट द पॉइंट कि व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये वैल्यू होनी चाहिए थी मोर एक्सोथर्मिक, राइट, क्योंकि हमें लग रहा था कि सारे का सारा डिसॉल्व हो गया है, बट ये क्योंकि अनडिसॉल्व था कुछ, इसलिए ये वैल्यू क्या हो गई, लेस एक्सोथर्मिक। सो मैं पहले एक्सप्लेनेशन दे दूं, तो हम यहां लिख सकते हैं इफ some solid MgSO4 was undissolved, this means the value calculated in experiment 1 is less exothermic than expected. ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं लेस एक्सोथर्मिक। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब कम सॉलिड डिसॉल्व होगा तो एनर्जी भी कम रिलीज करेगा, which means lesser solid is dissolved, then lesser energy is produced. सही। इसकी एक ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन और भी दे सकते हैं, जो मुझे फील हो रहा है कि हो सकती है। और इसकी ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि जाहिर सी बात है मुकम्मल तौर पे सॉलिड मैग्नीशियम सल्फेट डिसॉल्व नहीं हुआ, कुछ अनडिसॉल्व रह गया, तो जब कम अमाउंट डिसॉल्व हुआ तो नंबर ऑफ मोल्स भी कम होंगे। सही है, तो मैं यहां से पहला पॉइंट ये ले लेता हूं कि लेस सॉलिड MgSO4 dissolved then less number of moles reacted। सही है, भाई कम डिसॉल्व होंगे कम रिएक्शन करेंगे। अच्छा, अगर कम रिएक्शन करेंगे और लेस नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो जाहिर सी बात है डेल्टा टी यानी टेम्परेचर चेंज भी कम आएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने यही तो बात की है, ये देखिए हमने ये कहा था कि जब लेस नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो टेम्परेचर चेंज भी स्मॉल है, तो जब वो कम डिसॉल्व हो रहा है तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ मोल्स भी कम होंगे जो कि रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे, जिसकी वजह से टेम्परेचर चेंज भी क्या होगा, कम। तो हम यहाँ कहेंगे लेस
temperature change would be observed और जब टेम्परेचर चेंज ऑब्जर्व होगा ना तो जाहिर सी बात है डेल्टा एच भी क्या हो जाएगी आपके पास, स्मॉलर। सही है, आप ये भी कह सकते हैं। आई होप इट मेक सेंस टू यू। मैं ये कह रहा हूं कि डेल्टा क्यू इक्वल्स, सॉरी ये है आपके पास डेल्टा एच इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। आपके पास ये कम हो गया तो जाहिर सी बात है अल्टीमेटली ये भी क्या होगा आपके पास, स्मॉलर ही होगा। और स्मॉलर हम कभी भी नहीं लिखते, हमने आपको बताया अगर स्मॉलर है तो आप लेस एक्सोथर्मिक लिखोगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं लेस एक्सोथर्मिक। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। दोनों एक्सप्लेनेशंस बिल्कुल ठीक हैं, दोनों में से आप जो चाहें लिख सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। दैट there's the end of question number 1. Let's move on to the next question. Okay, seems like this question belongs to ionic equilibria. Okay, let's continue with the question. A student asked to determine the acid dissociation constant for butanoic acid. ये है ब्यूटानिक एसिड का फॉर्मूला और आप सब जानते हैं कि ब्यूटानिक एसिड एक वीक एसिड है और तमाम वीक एसिड को हमने पढ़ाते हुए आपको कहा था जनरली HX से रिप्रेजेंट करेंगे, तो जब ये आयोनाइज होगा तो ये कन्वर्ट होगा H+ एंड X- में। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट होता है और ये रिएक्टेंट होता है, तो एग्जामिनर ने उसको ब्यूटानोइक आयंस हाइड्रोजन आयंस में कन्वर्ट किया और ये ब्यूटानिक एसिड लिखा। तो आई होप इट मेक्स सेंस टू यू कि ये इक्वेशन एग्जामिनर ने विद रिस्पेक्ट टू ब्यूटानिक एसिड लिख के दी। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं आपसे द स्टूडेंट इज टोल्ड टू मेजर द पीएच ऑफ 8 बफर सॉल्यूशंस। ओके भाई, पीएच मेजर करनी है आपको, तो पीएच मेजर करने के लिए ऑब्वियसली पीएच मीटर यूज करोगे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कंटेनिंग ब्यूटानिक एसिड एंड द सॉल्ट ऑफ सोडियम ब्यूटानोइट। अब ये जो सॉल्ट ऑफ सोडियम ब्यूटानोइट है इसको हमने थ्योरी पढ़ाते हुए रिप्रेजेंट किया था NaX से, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, सोडियम सॉल्ट है ये। तो अगर ये सोडियम सॉल्ट है तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ऑब्वियसली ये फुली आयोनाइज होगा सोडियम आयंस में एंड X- आयंस में, यानी ये सॉल्ट हो जाएगा आपका। और इस सॉल्ट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस सॉल्ट को बेसिकली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्यूटानोइट आयन से, यानी X- को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ब्यूटानोइट आयन से, राइट। वो कह रहे हैं ईच बफर सॉल्यूशन कंटेन अ डिफरेंट रेशियो ऑफ दिस। ओके, ईच बफर सॉल्यूशन कंटेन अ डिफरेंट रेशियो ऑफ दिस। Each buffer solution is prepared by mixing different volume of distilled water, 2 mole per dm cube butanic acid and 2 mole per dm cube sodium butanoate, यानी concentration of acid and concentration of salt एग्जामिनर ने सेम ली हुई है लेकिन वो डिस्टिल्ड वाटर का जो वॉल्यूम है वो डिफरेंट यूज कर रहे हैं, राइट। पार्ट ए, प्योर इथेनोइक ब्यूटानिक एसिड मस्ट बी केप्ट अवे फ्रॉम नेकेड फ्लेम, एक्सप्लेन व्हाई। तो आपको पहले भी बताया कि तमाम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्लेमेबल होते हैं और वो बर्न्ट हो जाते हैं, एक्सप्लोड कर जाते हैं, इसलिए उनको नेकेड फ्लेम से दूर रखना जरूरी है। तो आप बताइए कि ब्यूटानोइक एसिड is flammable, so we need to kept away from naked flame. All right, now in B part 1, what is the maximum volume of 2 mole per dm cube solution that can be prepared using 55 gram of sodium butanate? We have mass of sodium butanate, so अगर मैं
सोडियम ब्यूटानोएट के MR से डिवाइड करूंगा तो मुझे मोल्स ऑफ सोडियम ब्यूटानोएट मिल जाएंगे, राइट? एंड वी नो द कंसंट्रेशन, वी नो द मोल्स. I believe I can find out the volume. So first of all, let's find out the MR of sodium butanoate. Okay, we have 4 carbon atoms, so 12 times 4. We have 2 oxygen atoms, so 16 times 2. We have 1 sodium, so it's 23. And we have 3, 5, 7 hydrogen atoms, so 7 ho jayenge. So it's going to be 110, I believe. मुझे लग रहा है, wait, 12 times 4 plus 16 times 2 plus 23 plus 7. It's 110 exactly. That is the MR of sodium butanoate. Now we need to find out the moles of sodium butanoate, moles of sodium butanoate. So beta मेरे पास है 55.0 ग्राम divided by 110. तो मेरे पास यहाँ से 55 divided by आंसर 0.5 moles आ जाएंगे, right? Now I know the concentration of salt, which is 2 mole per dm cube. That means 1000 centimeter cube of salt, बल्कि सोडियम ब्यूटानोएट लिख देते हैं पूरा. सोडियम ब्यूटानोएट contain 2.00 moles. So if we have 0.5 moles of sodium butanoate, what is going to be the volume? So cross multiply करेंगे तो volume आ जाएगा आपके पास, volume of sodium butanoate is 250 centimeter cube. तो यहाँ लिखेंगे हम 250 centimeter cube. Oops. ठीक है. Okay, now the next part is a student is given 55 gram of salt in a beaker. Okay, describe the next steps a student should take to make 2 mole per dm cube solution of volume calculated in B part 1. B part 1. B part 1 में 250 cm cube वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया था और 55 ग्राम जो है वो हमें प्लेस कर रहे हैं. सो वो कह रहे हैं कि द नेम एंड कैपेसिटी एंड एनी की ऑपरेटर्स व्हिच शुड बी यूज्ड. ओके, कैपेसिटी का मतलब होगा कि जिस वॉल्यूम का आप या साइज का आप ऑपरेटर्स यूज कर रहे हो वो भी बताना है और नाम भी बताना है. सो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं एक 100 cm क्यूब का बीकर लूंगा. उस 100 cm क्यूब के बीकर के अंदर मैं 55 ग्राम ऑफ सॉल्ट प्लेस करूंगा. 55 ग्राम ऑफ सॉल्ट प्लेस करने के बाद मैं डिस्टिल वाटर उस बीकर के अंदर थोड़ा सा ऐड करूंगा ताकि वो जो 55 ग्राम ऑफ सॉल्ट है वो डिसॉल्व हो जाए, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पॉइंट इन दिस नंबर्ड स्टेप्स. याद रखिएगा नंबर्ड स्टेप्स क्या है, स्टेप्स की फॉर्म में लिखना है. हम कहेंगे यहाँ पर प्लेस 55.0 gram of salt in a 100 cm cube beaker and then dissolve this solid with distilled water. With distilled water. Right?
इसके बाद मैं इस सॉल्यूशन को ट्रांसफर करूंगा 250 cm क्यूब ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। ट्रांसफर this solution in a 250 cm cube volumetric flask ठीक है। नेक्स्ट इज, जिस बीकर के अंदर मैंने 55 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व किया था, उस बीकर को मैं दोबारा से डिस्टिल वाटर के थ्रू वॉश करूंगा और वो तमाम वॉशिंग इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर वापस प्लेस की जाएंगी, ठीक है, ताकि अगर उसमें कुछ अमाउंट रह गया हो सॉल्ट का तो वो भी वॉशिंग के थ्रू वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का हिस्सा बन जाए, उसमें ऐड हो जाए। वॉश द बीकर with distilled water and then place this washing in a volumetric flask. In a volumetric flask. जब मैं वॉशिंग को भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ऐड कर लूंगा तो फिर मैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को डिस्टिल वाटर से ड्रॉप टू ड्रॉप मेकअप करूंगा अप टू इट्स 250 cm क्यूब मार्क। Add distilled water, dropwise in a volumetric flask up to its 250 cm क्यूब मार्क, ठीक है। 250 cm क्यूब मार्क करने के बाद मैं स्टॉपर लगाऊंगा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को और फ्लास्क को बहुत अच्छे से शेक करूंगा ताकि जितना भी कंटेंट है वो प्रॉपर तरीके से मिक्स हो। स्टॉपर द फ्लास्क, shake the flask thoroughly to mix well. Okay. वो कह रहे हैं complete the table to show the volumes of salt and distilled water that would be needed to provide the stated number of moles of this and salt for 50 cm cube of buffer solution. Okay, so the most important aspect of this part of the question is that we have 50 cm cube का buffer solution. अब यार अगर buffer solution 50 cm cube का है तो obviously as per information उसमें distilled water भी है, उसमें सॉल्ट का भी वॉल्यूम है, उसमें एसिड का भी वॉल्यूम है। इसका मतलब जो टोटल वॉल्यूम ऑफ बफर सॉल्यूशन 50 cm क्यूब है, दैट कंटेन्स ऑल दीज थ्री थिंग्स, राइट। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इस बात को ताकि हमें याद रहे कि हमारे पास तीन चीजें, टोटल वॉल्यूम ऑफ बफर सॉल्यूशन इज 50.0 cm क्यूब, yeah, 50.0 cm cube. That includes distilled water volume, of distilled water plus volume of acid plus volume of salt. So guys, in the entire table we need to keep the volume constant.
सही है, ये भी ध्यान में रखिएगा कि टोटल वॉल्यूम नीड्स टू बी कांस्टेंट। ठीक है, ओके, this is moles of acid, this is volume of acid, okay, and the concentration of acid is always given, okay। So मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या हुआ है, ये वैल्यूज कैसे डिटरमाइन हुई हैं। See ना, we know the concentration, we know the volume, by using these two values we can find the moles। तो मैं एक सैंपल कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ कि एग्जामिनर ने इसको, इन दो टेबल्स को यूज कैसे किया है, इसको फिल कैसे किया है, ठीक है ना। सो व्हाट वी कैन डू इज कि हम कहेंगे कि हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिड कंटेन 2.00 मोल्स, राइट। सो मुझे एग्जामिनर ने वॉल्यूम दिया हुआ है 25 cm क्यूब। सो बताइए मोल्स कितने होंगे, तो ये मोल्स हो जाएंगे आपके पास 0.050। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू कि ये मोल्स आ कैसे रहे हैं। और आप नोट करें, एग्जामिनर जो है वो वॉल्यूम को सेम रखा है, फिर चेंज करना शुरू किया, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंटायर कॉन्सेप्ट, मुझे एग्जामिनर ने कंसंट्रेशन दी हुई है, मुझे एग्जामिनर ने मोल्स दिए हैं, तो मुझे एग्जामिनर कह रहे हैं इसका कि इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करो, राइट। सो मैं एक सैंपल कैलकुलेशन इसकी भी करके दिखा देता हूँ, और फिर हम कैलकुलेटर पे सारे का सारा काम करेंगे सो दैट हम इसको फिल कर लें। सो वी नो द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि 1000 cm क्यूब ऑफ सॉल्ट कंटेन 2.00 मोल्स। अगर मुझे 0.005 मोल्स क्वेश्चन में गिवन थे, ये गिवन है सॉल्ट के, तो बताइए वॉल्यूम कितना होगा। तो ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.005 डिवाइड, ये आ गया, और डिवाइडेड बाय 2, सो इट्स गोइंग टू बी 2.5। सही है जी, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2.5, राइट। तो ये है मेरे पास 2.5 cm क्यूब। सो कैलकुलेटर पे जल्दी जल्दी सॉल्व करके देखते हैं। 0.008 into 1000 divided by 2, so it's going to be 4.0, right। फिर है 0.010 into 1000 divided by 2, it's going to be 5.0, ठीक है। फिर 0.025 into 1000 divided by 2, 12.5, then oops, इट्स ऑल राइट, मैंने रेड पेन से कर दिया, कोई इशू नहीं है। 0.050 into 1000 divided by 2, so it's going to be 25.0। देन सेम कंसेंट, मोल सेम है तो वॉल्यूम फिर सेम आ जाएगा, देन मोल सेम है तो वॉल्यूम फिर सेम आ जाएगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर भी वॉल्यूम सेम आ जाएगा 25.0, ठीक है। सो मुझे बेसिकली फर्स्ट 4 स्टेप्स करने थे, बाकी तो सब सेम थे। ये है 2.5, then 4.0, फिर 5.0 and then 12.5। ओके, सो अगर मेरे पास टोटल बफर सॉल्यूशन 50 cm क्यूब है, उसमें से एसिड 25 है और सॉल्ट 2.5 है, तो फिर डिस्टिल वाटर कितना होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक सैंपल कैलकुलेशन और कर देता हूँ। 50 टोटल बफर सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, उसमें आपके पास 25 एसिड है और 2.5 जो है वो सॉल्ट है, तो यहां से डिस्टिल वाटर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 27.5 माइनस 50, सो ये हो जाएगा आपके पास 22.5, राइट। सो इट्स गोइंग टू बी 22.5। तो अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, 50 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर यहाँ पर आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 50 से सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर यहाँ आएगा। तो हम जल्दी 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 जो है वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा
50 minus 29 is going to be 21.0. Then 50 minus 30 is 30.0. Then 25 plus 12.5 minus 50 is going to be 12.5, right? फिर उसके बाद है आपके पास 25 and 15 30 35 40, तो ये 10.0. फिर 25 and 5 30, तो ये 20.0. और फिर ये 25 and 3 28. 50 minus 28 is going to be 22.0. 25 and 2 27. 27 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 50 से, तो 23.0. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू कि किस तरह से कैलकुलेशन की गई है, बट 2 मार्क्स के लिए आई थिंक इट्स क्वाइट इजी in order to get 2 marks. Now the next is, oops, okay, a lot of calculation again. Let's check it out, what's going on. The pH of each buffer solution is measured. Okay, the value of the pH is reported in the table along with the number of moles of acid and salt in each 50 cm cube solution. Okay, तो value of pH जो है वो record हुई भी है already, ये given है आपके पास. Moles of acid भी given है, moles of salt भी given है, right? और acid over base minus log acid over base का जो टेबल है वो कंप्लीट करने के लिए कह रहे हैं हमसे, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने हमें रेशियो की वैल्यूज दी हुई हैं. तो सिंपल मैं माइनस लॉग अप्लाई करूंगा, इसके ऊपर आंसर आ जाएगा मेरे पास. सो चलें करते हैं. ये हो जाएगा माइनस लॉग 10 इज गोइंग टू बी -1. And since examiner is saying 2 decimal places, इसका मतलब मैं -1.00 करूंगा. फिर है मेरे पास माइनस लॉग 6.25, इट्स गोइंग टू बी -0.759, तो मैं राउंड ऑफ करके -8.0 कर लेता हूं. फिर है माइनस लॉग 5 -0.69, तो मैं इसको कर लेता हूं -0.70. फिर है मेरे पास माइनस लॉग 2 0.30, -0.301 है, तो मैं -0.30 कर लेता हूँ. फिर है माइनस लॉग 0.6, 0.221 है, तो मैं -0.22 कर लेता हूँ. ओके, फिर है लॉग 0.698 कह रहे हैं, तो ये हो जाएगा +0.70. फिर है लॉग 0.92, तो ये हो जाएगा +0.92. लॉग 0.08, ये 1.096, तो ये हो जाएगा +1.10. ठीक है, ओके. फिर उसके बाद वो मुझसे कह रहे हैं इन पार्ट 2 प्लॉट अ ग्राफ ऑफ pH y एक्सिस. इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास y एक्सिस था और माइनस एसिड ओवर लॉग इज बेसिकली योर y एक्सिस. ये y एक्सिस है एंड आई बिलीव ये x एक्सिस है. ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं यूज अ क्रॉस टू प्लॉट ईच डेटा पॉइंट, ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट. ओके, सो बेटा मैंने मैंने ग्राफ प्लॉट पहले से करके रखा हुआ है इन ऑर्डर टू स्टे सेव टाइम. लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मैं इस ग्राफ को बना रहा था, कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा टफ हो रही थी मेरे लिए,
सो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि ये ग्राफ जरूर प्लॉट करें आप, सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि हाउ टू प्लॉट द पॉइंट्स, बिकॉज यहाँ पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए मैंने खुद बहुत स्ट्रगल की थी, राइट। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ये पॉइंट्स प्लॉट करें और ग्राफ प्लॉट करें, यू विल गेट द आइडिया कि भाई किस तरह से ग्राफ को प्लॉट करना है, मैनिपुलेट करना है, ठीक है। सो ये हमने लाइन ऑफ बेस्ट फिट कर ली। फिर वो हमसे कह रहे हैं सर्किल द पॉइंट द ग्राफ यू कंसीडर टू बी मोस्ट एनोमलस। तो मैंने जो मोस्ट एनोमलस पॉइंट था उसको सर्किल कर दिया यहाँ पर, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब वो आपसे कह रहे हैं सजेस्ट one reason why this anomaly may have occurred during this experimental procedure. Assume no error was made in recording the pH. वो कह रहे हैं pH की रिकॉर्डिंग को छोड़िए, ये बताइए कि pH की रिकॉर्डिंग के अलावा ऐसा क्या एरर हो सकता है जिसकी वजह से ये अनोमलस पॉइंट जनरेट हुआ। तो बेटा आपके पास pH यहां पर आई है, राइट, जबकि ये pH यहां होनी चाहिए थी। सो pH एक्चुअली लोअर होनी चाहिए थी, बट हायर आई है मेरे पास, राइट। pH हायर आई है, हायर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है, बात समझ में आ रही है। pH हायर देन एक्सपेक्टेड, तो देखो यहाँ पर pH क्या हो रही है, हायर हो रही है ना, यानी यहाँ से यहाँ आप जा रहे हो तो pH हायर हो रही है, हायर देन एक्सपेक्टेड हो रही है, इसलिए अनोमलस पॉइंट हमें वहां पर मिला, ओरिजिनल के बजाय, एक्सपेक्टेड के बजाय, राइट। सो pH हायर हो रही है, pH हायर हो रही है, वेट, pH हायर हो रही है, pH हायर क्यों हो रही है, क्योंकि हाँ देखिए ये pH हायर हो रही है इसलिए क्योंकि ये जो रेशो है ये डिक्रीज हो रहा है, सही है। ये रेशो क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये जो आपके पास माइनस लॉग एसिड ओवर बेस है ये पॉजिटिव हो रहा है, राइट। और पॉजिटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी जो कंसंट्रेशन होगी या इसके जो मोल्स होंगे वो ज्यादा होंगे, सही है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव हो रहा है, राइट। तो मैं इसको थोड़ा सा जगह नहीं है मेरे पास, बट आई ट्राई टू फिक्स इट, आई ट्राई टू फिक्स इट। एक्सप्लेनेशन पहले लिख देता हूं मैं, दोबारा से सुनिएगा, हाँ पहले मैं लिखता हूं फिर मैं दोबारा से बताता हूँ। लेट मी राइट द होल इंफॉर्मेशन अगेन। फॉर anomalous पॉइंट, मेरा सबसे पहला पॉइंट ये है कि पीएच जो है वो हायर हुई है देन एक्सपेक्टेड, pH is higher than expected, right। और हायर देन एक्सपेक्टेड क्यों हुआ है, क्योंकि जो रेशो है बिटवीन एसिड एंड बेस वो डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज रेशो ऑफ एसिड ओवर सॉल्ट डिक्रीजेस। एसिड ओवर सॉल्ट का रेशो डिक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो माइनस लॉग एसिड ओवर बेस है वो मोर पॉजिटिव हो रहा है, माइनस लॉग एसिड ओवर सॉल्ट इज मोर पॉजिटिव। अगर ये मोर पॉजिटिव हो रहा है तो इसका मतलब ये मोर पॉजिटिव हो रहा है, ये मोर पॉजिटिव इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो रेशो है ये 1 से कम होता जा रहा है, ठीक है। और ये रेशो 1 से कम क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बेस का कंटेंट ज्यादा होगा, एसिड का कंटेंट कम होगा, यानी अमाउंट ऑफ एसिड इज लोअर एंड अमाउंट ऑफ बेस इज बिगर। सो हम इसको भी लिख देते हैं यहाँ पर, because amount of base
is bigger and amount of acid is smaller. So that is a whole explanation for getting this anomalous point here instead of here, right? So मैंने ये anomalous point किस पर calculate किया है बेटा? It's basically 0.3 पे, right? -0.3 पे आया ये roughly जो मुझे नजर आ रहा है, that is -0.3. -0.3 के ऊपर anomalous point है, higher pH है, right? So मैं यहाँ पर कुछ इसी lines में लिख देता हूँ आपको, and I hope you can link that explanation. मैं लिख देता हूँ कि anomalous point at -0.3 has pH higher than expected. Higher than expected. कब expected हुआ? जब concentration of acid over salt lower हुआ, expected से, ठीक है? This means buffer solution में acid के moles कम और base के moles ज्यादा होंगे. This means in buffer solution moles of acid is bigger while moles of base is lower. ठीक है? इसके बाद है आपके पास when the concentration of acid is equal to the concentration of base. Guys, we have done this in A2. इसको कहते हैं half neutralization point. At half neutralization point, concentration of acid is always concentration of salt, which is why pH is always equals to pK. वो कह रहे हैं use this information and your graph to find the value of the pK. Again, that's what we have done in the class. मैंने आपको calculate करना सिखाया था. So wait करो एक मिनट. Concentration of acid is equals to concentration of salt, right? तो जब हेंडरसन इक्वेशन लगाओगे आप तो ये हो जाएगा pH equals to pK minus log concentration of acid over concentration of salt. आप जानते हो कि इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है. जब इक्वल है तो 1/1 gives you 1. इक्वल है तो 1 ले लो, तो ये हो जाएगा pH equals to pKa minus log 0 minus log 0. तो ये हो जाएगा pH equals to pKa. वो कह रहा है ग्राफ यूज करो और वैल्यू ऑफ pK बताओ. तो बेटा मेरे पास क्या आया यहाँ पर? माइनस लॉग 0 आया है, राइट? इक्वल कंसंट्रेशन की वजह से. तो मैं ग्राफ में जाऊंगा, माइनस लॉग देखूंगा 0 कहाँ पर है. मैंने उस 0 के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करी और लाइन ड्रॉ करके मैंने डिटरमिन कर लिया कि मेरे पास pH की वैल्यू रफली कितनी आ रही है? 4.81. इसका मतलब pK की वैल्यू भी क्या होगी? 4.81. तो मैं यहाँ बोलूंगा फ्रॉम ग्राफ pH कितनी है? 4.81. सो pKa की वैल्यू कितनी होगी बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप? 4.81, राइट?
कि उसके बाद वो कह रहे हैं यूज योर आंसर टू C4, यूज योर आंसर टू C4 यानी पीके की वैल्यू मैं लूं टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के, तो हम सबसे पहले ओ दैट्स इजी, उसने एक रिलेशनशिप भी मुझे दे दिया है, राइट। चलें फिर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा पहले। स्टेट द यूनिट्स ऑफ Ka, दैट इज मोल पर डीएम क्यूब, ये तो आपको पता है, ये तो बहुत आसान है। गिव योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके ओके, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। रिलेशनशिप उन्होंने बता दिया हमें। पीके की वैल्यू है 4.81 इक्वल्स टू माइनस लॉग के ए। तो अगर मैं यहां से कैलकुलेशन मैंने कराई नहीं है आपको, ये सारी की सारी हो जाएगा एंटी लॉग माइनस 4.8 इक्वल्स टू के ए। तो यहां से के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, एंड द वैल्यू ऑफ के ए इज शिफ्ट log minus 4.81, 4.81. So 1.5488, 1.5488, 1.5488 into 10 to the power minus 5, right? So मुझे कह रहे हैं 3 significant figures में कन्वर्ट करो, तो मैं इसको 1.54 एक मिनट 548 या 3 significant figures, तो 1.55 into 10 to the power minus 5 लूंगा और यूनिट हो जाएगी मोल पर डीएम क्यूब। That's an easy part. For 2 marks, that's so easy for 2 marks. फिर वो कह रहे हैं the value of pKa is lower. Guys, you have to be very very careful. The value of pKa is lower. तो मैंने क्लास में आपको ये कहा है if the value of Ka is higher, the value of pKa is lower. तो अगर एग्जामिनर ने तुम्हें ये कहा कि value of pKa is lower, on the other hand Ka की वैल्यू ज्यादा हो रही होगी। We have done that area in the class. We have done that area of concept in paper 4 in the class, right? So मेरा पहला पॉइंट तो ये होगा कि if pKa value is lower, then value of value of Ka is higher. सही। अच्छा, मैंने ये भी बताया है कि जब वैल्यू ऑफ Ka हायर होती है तो इसका मतलब डिसोसिएशन ज्यादा होती है, सॉल्यूशन में आयंस की क्वांटिटी ज्यादा होती है, मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी कम होती है। सही है। हायर वैल्यू of Ka shows more dissociation, so more ions and fewer molecules. Right? ठीक है, तो ये सिर्फ इस पार्ट को पढ़ने के बाद मैंने ये 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए। आगे पढ़ते हैं। When the experiment is repeated at higher temperature, what does this tells you about the enthalpy of dissociation of this? Explain your answer, okay? So मैं यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ आपको, that is CH3, CH2, CH2, COOH, ये डिसोसिएट होगा into its H plus CH3, CH2, CH2, COO negative, right? So the thing is कि अगर इसकी डिसोसिएशन हो रही है तो डिसोसिएशन इज बेसिकली एन एंडोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, राइट? तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा तो जाहिर सी बात है रिएक्शन फेवर्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, ठीक है ना? आयनाइजेशन ज्यादा होगी, जब आयनाइजेशन ज्यादा होगी तो आयंस की क्वांटिटी ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी कम होगी, के की वैल्यू ज्यादा होगी, पीके की वैल्यू
लोअर होगी। दैट मीन्स कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, एंडोथर्मिक। सही है, याद रखिएगा, मैं दोबारा से बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ एसिड की डिसोसिएशन हो रही है, एंड डिसोसिएशन इज बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस। बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू प्लस होगी। सो किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। दैट शोज के आयंस की क्वांटिटी ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी कम होगी। जब आयंस की क्वांटिटी ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी कम होगी, तो डिसोसिएशन ज्यादा होगी, डिसोसिएशन ज्यादा होगी, के की वैल्यू ज्यादा होगी, के की वैल्यू ज्यादा होगी, तो पीके की वैल्यू कम होगी। दैट्स हाउ यू कैन लिंक ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एंथैल्पी changes endothermic because dissociation of acid is also endothermic, since it is a bond breaking process. Uh, that's the end of question number 2. I hope it makes sense to you. Please